वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। इस समय ये धूप निकला हुआ है, जितना सत्य है उतने ये कहानी झूठी है और ये बहुत जल्द ये कहानी समाप्त हो जाएगी। ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी खुशी को त्यागती हूँ। साक्षी मलिक का ट्वीट आया, बजरंग पुनिया का आया कि ये दिखाता है कि महिलाएं हार गई, ब्रिजभूषण जीत गए। ब्रिजभूषण जीतेंगे ही जीतेंगे, ब्रिजभूषण हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इस प्रकरण में भी जीतेंगे और बेइज्जत होकर के वो लोग कोर्ट से जाएंगे। अब बट हो गया, अब बट हो गया। We are in Kesarganj in eastern Uttar Pradesh at a public meeting of Karan Bhushan Singh, who's the BJP candidate from here. He's the son of the local Bahubali Brij Bhushan Singh, the sitting MP and the former head of India's Wrestling Federation, who had to quit after a number of women wrestlers accused him of sexual harassment. The BJP may have denied him the ticket. By giving it to his son, many believe they're ensuring that the remote control continues to remain in the hand of Brij Bhushan Singh. Mandate 2024. Claim versus reality with Srinivasan Jain. Welcome to our series where we uncover the powerful narratives driving the BJP's Vision 2024. One of them is that women have become safer under the Modi government, particularly in states like Uttar Pradesh, where we are. The BJP in turn has attacked the opposition, for example, targeting them for the Sandesh Khali scandal in West Bengal, when leaders of the Trinamool Congress, the ruling party there, have been accused of assaulting women. But what of the accused sex predators in the BJP's own backyard? Karan Bhushan Singh takes center stage in Kesarganj. His last-minute entry, an unexpected turn of events. Karan, a national level shooter and the president of the UP Wrestling Federation, is seen as a political novice. But the BJP left with no choice. The charges against Brij Bhushan are grave. Last year, 6 women wrestlers came forward to accuse him of sexual molestation. Their testimonies part of the Delhi police charge sheet. And so, presumably, the BJP's half measure of dropping Brij Bhushan and fielding his son. That half measure is in keeping with the BJP's wariness in taking tough action against its disgraced MP, right from when the charges first surfaced. The party and government's inaction prompting street protests last year by the wrestling world's biggest names. The wrestlers reacted once again with anguish on news of Singh's son being given the ticket, calling it a win for the BJP strongman. In his sprawling farmhouse, it is clear that Singh, surrounded by his supporters, is guiding the campaign. ब्रिजभूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा इस वक्त चल रहा है आपका चुनाव कैंपेन, कैसा हो रहा है? इस समय आप मेरे गांव में मेरे घर पर मौजूद हैं जी, और हमारे सुपुत्र कर्ण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। फिलहाल अभी तक हम प्रचार में नहीं निकले हैं। पर आप मान के चलते हैं ब्रिजभूषण जी कि आपको टिकट नहीं मिला, आपके बेटे को मिला है, लेकिन तब भी उससे विपक्ष अटैक कर रहा है कि ये दिखाता है कि भाजपा एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट तब भी आपके बेटे को टिकट दिया, तो एक तरह से आप ही का दबदबा है, टिकट आप ही को मिला है। नहीं, टिकट तो मिला है और पार्टी ने दिया है, पार्टी का धन्यवाद है और इस पार्टी को खड़ा करने में हमारा रोल है। सन 89 से इस पार्टी को मैंने खड़ा किया है। जहाँ पर आप इस समय बैठे हैं, यहाँ जीरो स्थिति थी।
0 से अगर 100 पर लाए हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। पार्टी को आप ही ने खड़ा किया है, यहाँ पार्टी को हमने खड़ा किया है। और अभी भी पार्टी आप मतलब आपको टिकट नहीं मिला लेकिन संगठन आपके साथ है, भाजपा पूरा साथ है आपके इस चुनाव में। किस संगठन की बात कर रहे हैं? भाजपा की। भाजपा क्या पूरा जनता जैसे साथ अभी है। पूरा जनता यहाँ हम देख रहे हैं, ये सब अब पूरी ये तो public- देखिए, ये परिणाम आने पर पता चलेगा कि कितना साथ है कितना नहीं है। नहीं, लेकिन जो आरोपों की बात है उसको लेकर जो विपक्ष कह देखिए, रहा उस है कि आरोप- नहीं कि विपक्ष कह रहा है कि फिर भाजपा कैसे कह सकती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। देखिए, जब हम आप- जिस विषय पर आप घूम करके आना चाहते हैं उस विषय पर मैं बोलना नहीं चाहता। ना वो लोग डेट बताए हैं, ना तारीख है, ना गवाह है। ना तारीख है और ना गवाह है। अभी तक मेरे ऊपर केस चल नहीं रहा, चार्जशीट फाइल हुई है, उसको मैंने प्रोटेस्ट किया है, जिसमें 7 तारीख को जजमेंट आना था, फिर वो 10 को हुआ है, और उसमें कई चीज़ें निकल करके आई हैं कि सब निराधार है, झूठ है, ये षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र का सूत्रधार कांग्रेस है। कांग्रेस ने सारे षड्यंत्र लगाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये सब निराधार है, लेकिन चार्जशीट तो है। दिल्ली पुलिस का 1500 पेज का चार्जशीट है, उसमें कई महिलाओं का बयान है, डिटेल है उसमें कि किस किस तरीके से हैरेसमेंट हुआ। तो इसको इतने आसानी से नकारा जा सकता है? ये आसानी से नहीं, जैसे इस समय ये धूप निकला हुआ है, जितना सत्य है उतने ये कहानी झूठी है, और ये बहुत जल्द ये कहानी समाप्त हो जाएगी। तो क्या ये बयानों को आप पूरी तरह से नकार रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई हमने महिला आरोप देखिए, लगाती आप है, बार उसका बार एक वहीं जा रहे हैं महत्व घूम करके। मैंने फर्स्ट डे एक बयान दिया था जी कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा, देखिए मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप नहीं है, आपको पता है क्या क्या आरोप है जी, लेकिन मैंने पहले दिन बयान दिया था कि एक भी आरोप अगर मेरे ऊपर सिद्ध हो जाएंगे तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। उसी बात पर आज भी कायम हूं। सिद्ध मतलब कन्विक्शन की आप बात कर रहे हैं, एक्यूजेशन की नहीं। मतलब कि अगर कोर्ट में आप कन्विक्ट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? सिद्ध होने का जो भी मतलब आप निकालना चाहे निकाल लें। कहने का मतलब जब ये कोर्ट में जाएगा और जब खुलना शुरू होगा, इतना आप जान लीजिए कि जिन जिन तारीखों का इन्होंने जिक्र किया है उन तारीखों को मैं उस स्थान पर नहीं हूं। हालांकि वो कह रहे हैं कि कॉल अब रिकॉर्ड की डिटेल है। आप घूम घूम वहीं आ रहे हैं। नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिन तारीख को इन्होंने बताया कि हम मिलने गए थे दिल्ली आवास पर जी, उस दिन मैं दिल्ली आवास पर ना होकर के लखनऊ में हूं। राइट। जिस दिन बताया दिल्ली आवास पर उस दिन मैं सर्बिया में बैठा हूं। एक भी घटनाक्रम का तालमेल नहीं मिल रहा है, एक भी घटनाक्रम का तालमेल ही नहीं मिल रहा है कि उस डेट को मुझसे कोई नहीं, मिला तो जब हो। वो कह रहे हैं उनके पास कॉल अब ये रिकॉर्ड है, जाकर के- फोटोग्राफ हैं, वो आप उसको एक दिखा भी रहे हैं। कॉल डिटेल, एक भी कॉल डिटेल, एक भी फोटोग्राफ उन लोगों ने नहीं दिया। उन लोगों ने तो तारीख भी नहीं बताई है। आप उस चार्जशीट को पढ़िए, ये उन्होंने तो तारीख भी नहीं बताई है। तो अगर गंभीर ये आरोप नहीं है ब्रिजभूषण जी, तो फिर टिकट आपको क्यों नहीं मिला? आपको इस्तीफा भी देना पड़ा है हेड ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन। अब बीजेपी ने टिकट नहीं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, पूरे कार्यकाल तक मैं रहा, उसके बाद चुनाव हुआ और हमारे ही समर्थित प्रत्याशी यानी पूरे देश ने उसका समर्थन किया संजय सिंह का। वो आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। नहीं, पर टिकट फिर आपको, अगर आरोप आप कह रहे हैं इतने बेबुनियाद हैं, तो टिकट तो फिर नहीं मिला आपको। ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है। अब जैसे आप जो है जबरदस्ती जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से बार बार आपको जैसे न चार्जशीट की जानकारी है, चार्जशीट आपने पढ़ी नहीं, आरोप आपने पढ़ा नहीं, और घूम घूम करके वहीं आ रहे हैं, आप जो षड्यंत्र चार्जशीट नहीं पढ़ा है। अच्छा, षड्यंत्र चार्जशीट पढ़ा होता, आपने वो पढ़ा होता या डे बाय डे नहीं, हमने बयाने नहीं, जो बयाने हैं वो तो हमने देखे हैं डिटेल में जो दिए हैं। बट मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं आरोप है कांग्रेस का, लेकिन आपने देखा होगा जब ये टिकट का बयान हुआ सीट का आपके बेटे का, तो साक्षी मलिक का ट्वीट आया, बजरंग पुनिया का आया कि ये दिखाता है कि महिलाएं हार गई हैं, ब्रिजभूषण जीत गए हैं। ब्रिजभूषण जीतेंगे ही जीतेंगे, ब्रिजभूषण हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इस प्रकरण में भी जीतेंगे और बेइज्जत होकर के वो लोग कोर्ट से जाएंगे। बट साक्षी मलिक अब बट हो गया।
For all of Brij Bhushan's flashes of anger, 2 days after our interview, the court in Delhi ruled that the police have enough material to proceed against him. We spoke to Sakshi Malik about Brij Bhushan's response. तो जब हमने उस बात किया, साक्षी आपकी बात रखी हमने उसके सामने कि साक्षी मलिक ने कहा कि इससे बृजभूषण जीत गया, महिलाएं हार गई, तो उसने काफी तेजी से बोला हाँ बृजभूषण जीतेगा और ये महिलाएं सब गलत साबित होंगी। गलत साबित तो अभी देख लो, कल कोर्ट से ऑर्डर आ ही गया कि उस पे जो है चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। जो लोग बोल रहे थे कि ये सब झूठे हैं, ये 10 साल से क्यों नहीं बोले, तो अभी तो सबको पता चल ही गया होगा कि जो भी सब आरोप थे, जो उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी और उसमें 5 लड़कियों के ऊपर आरोप तय भी हुए हैं। कल उसको वो मिला है, उसके ऊपर चार्जेस हुए हैं। तो मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के कॉल्स भी आए कि अच्छा हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत भी बढ़ रही है लड़कियों में कि हाँ ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई जरूर होती है। आपको साक्षी लगता है कि एक तरह से सरकार भाजपा से आपको लेट डाउन फीलिंग होता है कि इसकी जगह कि उसको पनिश किया जाए उसी के बेटे को टिकट दे रहे हैं, तो क्या आप उसको मान रहे हैं एक तरह से कि अभी भी सरकार भाजपा का हाथ उसके सर पे है? बिल्कुल सर, वो अगर सरकार चाहे तो बहुत कैंडिडेट है उनके पास टिकट देने के लिए, लेकिन उसी के बेटे को, तो ये चीज हमें भी थोड़ा अजीब लगा कि एक ही परिवार में ही क्यों करना, तो उसको ये प्रचार तो वो अभी भी वही कर रहा है। On the BJP campaign trail, the local MLA affirmed Brij Bhushan's central role. अगर वो इस बार सांसद ना भी बने तो रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा या बेटे? बड़े नेता है, पार्टी के बड़े नेता, बिल्कुल रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। फिर वो अगर कोई पद पर रहता नहीं रहता है, अच्छा। सीनियर लीडर तो रहता ही है, तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल भाई वो पिताजी हैं तो ठीक है, उनको वो तो उनका डायरेक्शन तो रहेगा ही। Karan Bhushan Singh too spoke of his father's guidance. तो ये जो कहा जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल आपके फादर के पास ही रहेगा, देखिए ये घर है और मैं उनके मार्गदर्शन पे चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या आपका विजन क्या है यहाँ के लिए? डेवलपमेंट, मोदी जी की जितनी भी नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की जितनी नीतियाँ यहाँ पे सुचारू रूप से लागू हो। और जो इतने एलिगेशंस अगेंस्ट योर फादर, नहीं वो सब बेबुनियाद है, आप उसको बिलीव नहीं करते? बिल्कुल नहीं। इतनी वुमेन आई सामने, रेस्लर्स ने प्रोटेस्ट किया। प्लांटेड है, प्लीज अच्छा प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, तो आप अभी कॉन्फिडेंट है विक्ट्री का? आपको नहीं लगता है बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस इट विल इंपैक्ट योर इलेक्शंस और एनीथिंग? नो नथिंग। यहाँ पे जो ये है वो फेस्टिवल की तरह है, फेस्टिवल की तरह है, हम लोग का फेस्टिवल की और आप कॉन्फिडेंट हैं? A festival to describe an election where the proxy candidate is accused of sexual assault? All the more when the BJP claims to be talking up women's safety as an election issue? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो आप कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा मतलब अभी भी भाजपा मानती है? हाँ, कहाँ महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई भाई, बताएं आप। जितना सम्मान महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के समय में है, जितनी सुरक्षा, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने दिया है, और किसी सरकार में, सपा की सरकार में क्या होता था आप बताइए? सरेआम बलात्कार होता था, बड़ी बड़ी घटनाएं। रुकावट के लिए खेद है। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट की ओर से एक छोटा सा संदेशा है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये आपका सब्सक्रिप्शन है जो हमें ऐसे वीडियोस और रिपोर्ट्स लाने में सक्षम बनाता है। रिसर्च, शूट, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कैमरा, साउंड, दोस्तों इन सब में काफ़ी खर्च होता है और हम ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता की असली कीमत क्या है। तो आज ही न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट को सब्सक्राइब करें। www.newslaundry.com/subscription पर जाएं और हमें सहयोग दें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। Brij Bhushan aside, assessing the Yogi government's track record on women's safety is complex. Government data shows that in the first 5 years of Yogi as Chief Minister, the incidence of crime against women in Uttar Pradesh is up 17%, from 56,000 cases to almost 66,000 cases. This may also be because a safer environment fosters a better, higher reporting of cases. So, what do voters in Kaisarganj think? Most women we tried to speak to were reluctant. Of the men, we came across only a handful of those critical of the charges against Singh. ये जो उनके खिलाफ आरोप है, इसको आप गंभीर मानते हैं? हाँ बिल्कुल गंभीर है। हम तो गोंडा से होके भी हम गए थे धरना देखने वहाँ,
जहाँ उनका हाँ जो सारे रेसलर्स का हाँ रेसलर का धरना देखे गए थे। मेरे पास वीडियोस और फोटोज भी हैं, यहाँ के होके भी देखने गए थे। अच्छा, जब साक्षी मलिक वगैरह आए थे। अशोका रोड गए थे, वहाँ भी देखने भी गए थे आप? हाँ बिल्कुल गए अच्छा थे, अच्छा। दिल्ली। ब्रिजभूषण के खिलाफ कुछ आरोप भी लगे थे, उसका भी कोई मायने है? यहाँ पर लोग मानते हैं कि उन्होंने गलत किया। जो के साथ अत्याचार हुआ वो भी हमारे घर की बहन बेटी थी, और आज हमारी बहन बेटी होती वो सगी तो हमें तकलीफ नहीं होता जी, तो इसलिए हम लोग क्षमा चाहेंगे। तो पिछली बार आपने किसको दिया था? पिछली बार तो ब्रिजभूषण को दिया, ब्रिजभूषण को दिया था, और इस बार आप नहीं देंगे? Most believe that women's safety under the BJP had improved while dismissing the charges against their MP. यूपी में ये कह रहे हैं कि जो नारी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बेहतर हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया, नारी सुरक्षा का मुद्दा भी बेहतर। अब तो आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी लेडीज जा रही हो, कहीं आने जाने में जरा से भी कहीं नहीं प्रॉब्लम हो रही है जी। लेकिन एक जो वो है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो काफी आरोप लगे थे पिछले साल, अभी आरोप लगे थे, आरोप साबित नहीं हुए हैं जी। अगर आरोप अभी साबित नहीं हुए, आरोप लगे थे तो लगने में कोई किसी का भी आप हमें कुछ कह दीजिए, हम आपको, इससे तो कोई चीज साबित नहीं हो जाती है। यूपी में एक बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का जी, तो उसमें बदलाव आया है नहीं आया? हाँ इसमें तो बदलाव बहुत आया। मोदी जी जो हमारे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी के लिए मतलब कुछ नहीं, किसान को मतलब वो 2000 रुपए वो मिल रहा है सालाना जो मिलता है, ठीक है, राशन मिल रहा है 5 किलो जो मिलता है हर एक यूनिट पे, ये सब तो सही है। मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ क्योंकि ब्रिजभूषण के खिलाफ आरोप लगे थे। देखो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो है हमारे बहुत सही है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गलत लगा है। जो पहलवान आरोप लगाए हैं पहले उन्हीं के साथ में रहते थे, बढ़िया से मस्त थे, खाते पीते थे, खेलते थे। जब उनको कोई चीज मतलब नहीं दिया गया तो वो झूठा आरोप लगाने लगे। अगर जो ऐसा सही होता तो आज वो जेल में होते। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या सोचा है आपने कुछ? अरे भाई अपने नेताजी को देंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को। ब्रिजभूषण शरण सिंह को देंगे आप भी? वही सही है। उनका तो टिकट कट गया। अरे तो क्या हुआ, उनके फैमिली मेंबर में तो हैं, फैमिली मेंबर हैं, उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। और जो इतने सारे आरोप लगे हैं, अरे उससे क्या लेना देना, हमारे यहाँ काम हो रहा है, सब कुछ काम हुआ है, हम उन्हीं को देंगे वोट। वो अगर किसी के घर न जाए फिर भी वो जीते, इतने जबरदस्त आदमी। काम बोलता हूँ, काम बोलता है, देखिए दबदबा है यार, क्या बात है। Voters backing the BJP on women's safety while ignoring the charges against Brij Bhushan could be for a number of reasons. The still fresh memories of alleged Gunda Raj under Samajwadi Party rule, Brij Bhushan's strongman reputation, and his building of a network of schools, colleges, hotels and hospitals in his home turf, all of which have strengthened his and the BJP's political grip. But while the BJP's gamble in siding with Brij Bhushan may help it in his East UP fiefdom, has it pushed the party on the back foot nationally? The party has a history of leaders linked to sexual assault, like Kuldeep Singh Sengar, BJP MLA from Unnao in UP, convicted of rape and murder. BJP ministers in Jammu marched in support of those accused in the Kathua rape case. In the Prajwal Revanna case, the party faces a firestorm of criticism after a BJP leader in Karnataka claimed to have alerted the High Command to the alleged sex assault videos, despite which the BJP backed Prajwal's campaign. And now the ticket to Brij Bhushan's son. Surabhi Hodigere is a spokesperson for the BJP in Karnataka. If you take the case of Brij Bhushan Sharan Singh, who is a BJP MP and who's faced multiple accusations of sexual misconduct by women wrestlers, his son gets the ticket. Instead of him, his son gets the ticket, which is being widely seen as an attempt to continue to grant him proxy control. And it's a move that's been widely condemned by, many of these champion wrestlers who are protesting against the charges against him. So how does that then square off with the BJP's claims to be protecting women? I find that problematic because the same argument can go towards as far as a chief minister. Lalu Prasad was, Rabri Devi was a proxy candidate, and there's multiple proxy candidates. In Karnataka, we have multiple daughters, sons, aunts, uncles, everybody standing in the name of ministers. Which the BJP has come out and been very critical of. When Lalu Prasad appointed Rabri Devi as quote-unquote his proxy, that was something that the BJP attacked. Absolutely. I think that's a fair attack, even from the opposition side in terms of Brij Bhushan's son. But I do believe that the party's stand here is that let law take its own course. The semantics and the signaling that you're talking about would have been absolutely fair if you had said that the party is obstructing justice. The fact that the party has not given him a ticket,
That is good signaling. The fact that the party is not standing behind him is good signaling. Now, I want to also say that the party, just to jump in, the party is fully standing behind him. I mean, he says this. We've just been on the ground there. The entire party unit is not standing necessarily behind the son, but behind him. I'm not aware of the reports that you are speaking about, Srinivasan, but I do believe that not getting a ticket is good signaling in itself. जब मैंने अपना करियर छोड़ा, मतलब रेसलिंग क्विट किया था, तो वो थोड़ा सा टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. उस टाइम तो मतलब मेंटली मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी. लेकिन अभी वही बात है कि टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, टाइम हील्स. तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे लाइफ में, और भी बहुत चीज़ें हैं करने के लिए. बाकी ये नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी, और जब तक उसको उचित सजा नहीं मिल जाती, हम सबकी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.